So, hi everyone. We understand this is the late afternoon panel, but a very, very important panel considering the theme of the fifth edition of the Radio Festival. We can see it's the Radio Fair SDGs on the air. So, in this particular panel, we are moving away from the discussion, the intense discussion you saw, very entertaining aspects you saw in the last panel on social media, radio, dominance, collaboration, and working together. So in this panel, we are actually moving into the area of conversations we are increasingly having inside the radio schools, that is the media schools who are teaching radio, inside public policy institutions, community radio stations, private broadcasters, almost everywhere. The conversation today is on sustainable development and what kind of communication, content, challenges we are facing in addressing the issue of creating communication for sustainable development. In this panel, we are focusing on SDG 3, that is good health and well-being. And we have some of the most popular names in front of you, some of those people who worked in creating content in interactive communications on radio on the subject of good health. So we have with us RJ Vijdan, then Sulakshana is there. RJ Vijdan is from Radio Mirchi, Kashmir. And he'll be talking about some interesting aspects of his journey in creating content on love and relationships, and of course, graduating to various aspects of emotional and mental health. Then, of course, we have Sulakshana Bramta, who's the regional programming head of Big FM, an extremely experienced broadcaster with a lot of experience in all kinds of content, especially in health communications. Thank you so much, Sulakshana. So much. And then we have Rohan, RJ Rohan. And of course, he was trying to tell us that how his picture in that poster was not right. But because of digital communications and the pace of it, it's now okay. Right, Nikita? It has been done. It's been redone. So Rohan, you're up there as Rohan. So we'll be talking about various campaigns, various initiatives that Rohan and his radio station has been looking into in the context of health and well-being. Besides that, we have RJ Divya. We're delighted to have her here. Lot of interactions. Most of us are familiar with her work on periods, on menstruation, other campaigns that she's been involved. And so, not taking much of your time, we'll start away with that conversation. So while talking about health and well-being, Vijdan, if you could just tell us, since you work for a specific community, how do you look at the various initiatives, how you look at the journey of creating content, programming, various programming formats that you have, you have been engaged in, and what is the kind of content that you thought was strongly, it strongly found resonance with the Kashmiri community? हेलो हाय, मैं विजदान हूँ और हिंदी उर्दू इसी में बात करेंगे. मुझे लगता है ज़्यादा ऑडियंस को एंगेज करने में बिल्कुल आसानी होगी. मैंने अपना रेडियो करियर स्टार्ट किया था 2018 में और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्थ की, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल बीइंग. आपको अगर चोट लग जाए तो उसका इलाज बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका दिल टूट जाए तो मुश्किल पेश आ जाती है. मैंने अपना रेडियो करियर स्टार्ट किया था विद अ शो दैट स्पोक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स. कश्मीर का प्रोग्रेसिव क्वोशंट या कश्मीर का क्वोशंट जो है, वहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वर्ड यूज करना ऑन एयर, इससे लोग जो है गुरेज करेंगे. अभी भी करते हैं. मैंने वो शो करना बंद कर दिया, लेकिन पहले 1 आध साल जिससे मुझे अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी मिली, थोड़ा बैकलैश भी मिला, उसी से हुआ.
मैं नया था, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था रेडियो के बारे में, और किसी ने बोला, उन दिनों मेरी दाढ़ी भी इतनी सफ़ेद नहीं हुआ करती थी, तो किसी ने कहा कि चॉकलेट बॉय जैसा दिखता है तो लड़कियों को बड़ा अच्छा लगेगा। ये मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही थी, लोगों को लगा कि चल जाएगा। मैं गया, मेरा खुद का ब्रेकअप हुआ था, 14 साल का रिलेशनशिप था, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड। और मुझे बोला कि अब तुम लोगों को लव एडवाइस दो। तो मैं क्या करता? तो मुझे जो भी कॉल करता तो मैं लोगों के सिर्फ ब्रेकअप्स करवाता था, क्योंकि मेरा खुद का भी हुआ था। तो कोई लड़की फोन करती, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मैं उसको कहता क्या ये आखिरी लड़का है दुनिया में, छोड़ दो, मूव ऑन। तो ऐसे 50-60 ब्रेकअप्स तो मैंने करा लिए होंगे। बट मजाक मजाक में 5-6 महीने ये चला, और एक दिन एक कॉल आया, और एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी। और हमारे यहाँ ये होता है कि कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, हमारे यहाँ कभी हड़ताल हो जाती है, कर्फ्यू हो जाता है, तो सिचुएशन बड़ी अनसर्टन रहती है। तो एक लड़की ने कम्युनिकेशन के लिए उसको अपने बॉयफ्रेंड तक कुछ बात पहुंचानी थी, मुझे इस्तेमाल किया, एंड शी रोट टू मी, और मैंने उसकी मदद कर दी। और कुछ अरसा बाद उनका ब्रेकअप हो गया। और आज भी मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने गलती की थी वो मैसेज पहुंचा के, क्योंकि उसके बाद मुझे उस लड़की का काउंसलर बनना पड़ा। दैट वॉज माई फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे आई एक्चुअली थॉट व्हाट आई एम डूइंग इज सीरियस। तब तक मुझे पता नहीं थी रेडियो क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये तो जिम्मेदारी आयद हो गई मुझ पे इस लड़की की, और उसको पूरी तरह से निकालने में मुझे भी कोई एक्सपर्टीज नहीं था। इवेंचुअली मैं उसको एक काउंसलर तक लेके गया, इसमें 3-4 महीने बीत गए। दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ पावरफुल रेडियो एज ए मीडियम इज। अब सवाल उठता है कि उसने मुझे ही क्यों बोला? क्योंकि उसको मेरी आवाज क्रेडिबल लगी, क्योंकि मैंने बात छेड़ी थी प्यार के मुतल्लिक। प्यार भी एक बीमारी ही है, तो उस बीमारी के इलाज तो किसी के पास नहीं, लेकिन अगर आप बात करोगे तो एक प्लेटफॉर्म, एक जगह, मैं बस एक सुनने वाला था उस लड़की के लिए। तो जब इन्होंने मुझे बोला कि आप रेडियो के हवाले से एज ए मीडियम पे बात करो और कहो कि किस तरह से हम वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो मुझे ये इंस्टेंस याद आया। वो शायद वो लड़की को उस टाइम पे, अगर मैं उसकी थोड़ी सी, आई वॉज जस्ट बीइंग अ गुड लिसनर। जनरली हम रेडियो पे बोलते हैं ना, आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हर, एंड ऑफलाइन रिश्ता रेडियो से कायम हुआ, लेकिन ऑफलाइन में उसको सुनता रहा। तो ये एक इंस्टेंस हुआ। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मेरा शो बंद हो गया बिकॉज कुछ फ्रंट पेज हेडलाइंस आ गई दैट आई एम स्प्रेडिंग वल्गैरिटी एंड स्टफ, तो हमने शो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद पैंडेमिक आया। पैंडेमिक में लोगों ने कोविड के हवाले से बहुत कुछ बोला, मास्क पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तो सभी ने किया, खास उसका जिक्र नहीं करूंगा। यहाँ इंस्टाग्राम की बात चली, तब तक आई वॉज लॉस्ट इन माई करियर, आई वॉज लॉस्ट। मैं फिर भी, अब तो मैं बिल्कुल ही लॉस्ट था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे दिन का शो दे दिया। मुझे कंप्लीटली नहीं पता थी मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, और आई वॉज द ओनली गाय इन द रेडियो स्टेशन। और लड़कियों को, जो मेरी फीमेल आरजेज हैं, दे वर डूइंग क्वाइट वेल, उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी थी, और इसमें कोविड आ गया। हमारे यहाँ कश्मीर का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, because I am very closely knit to my community, I am closely interacting with my community. हमारे यहाँ हालात कब कैसे बदल जाएं किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ 2019 का एक लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 2020 का कोविड लॉकडाउन हुआ, तब से तो लॉकडाउन ही चल रहे थे। तो when world witnessed लॉकडाउन, हम ऑलरेडी एक लॉकडाउन देख चुके थे। तो हमारे यहाँ दिमागी तवाजुन, में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगा, दिमागी तवाजुन जो लोगों का है, उसको कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को ऑन ए मेंटल लेवल। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर के साथ हमने काफी टाई अप्स करके लोगों को बस थोड़ा नज किया कि जाओ काउंसलर से बात कर लो। हमारे यहाँ डेटा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 2 में से 1 इंसान या स्ट्रेस्ड है, या उसको एंजाइटी है, या वो एंग्शियस है, या वो डिप्रेस्ड है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। Every second person you come across in our place is mentally stressed.
मुझे अपने बारे में कभी नहीं लगता था कि मैं किसी को हंसा पाऊंगा। मेरी पहली मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझसे कहा था, जोक बता। मैं जोक नहीं बोल पाया, और उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं दिल पे तो लगी थी। कोविड में जब सब लोग बैठे हुए थे, कोविड में जब सभी लोग कुछ खास कर नहीं रहे थे अपनी लाइफ में, आई टर्न द कैमरा टुवर्ड्स माई ओन सेल्फ। तब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई कैन मेक पीपल लाफ, और पहला वीडियो गया और वायरल हो गया। दूसरा बनाने पे मैं मजबूर हुआ। पहला तो मजाक में बनाया था, दूसरा बनाने पे मजबूर हुआ, ये भी चल गया। तीसरे में भी कुछ कमेंट्स आए, वो भी चला, और इवेंचुअली आज मैं एंजॉय करता हूं अपनी कश्मीरी स्केच कॉमेडी। मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लोगों को बड़े पसंद आते हैं, और मेरा सोशल मीडिया नंबर्स हो वो बहुत बहुत आगे गया। फॉर अ प्लेस लाइक कश्मीर, दोज नंबर्स आर वेरी नाइस, एंड whether it's my radio station, whether it's my own self, I'm quite content with those numbers. Apart from that, also when I walk down the street, people really give me a lot of love. But उसकी वजह ये है उस प्यार की जो रेसिप्रोकेट हुआ लोगों से, वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं उनको हंसा पाया। तो वो मोमेंट ऑफ एंक्शियसनेस, वो मोमेंट ऑफ एंग्जाइटी, वो दिन जहां पे दिन अच्छा नहीं जा रहा है, मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आया। सो इन माई ओन जर्नी, I think humor as an instrument of making people feel better mentally. मुझे इस बात पे बड़ा फख्र तो नहीं है, बट एक मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट ऐसी कैपेबिलिटी है मुझ में कि आज मैं कश्मीर में लोगों को 10-30 सेकंड में रील्स, इंस्टाग्राम रील्स 1 मिनट की होती है, 30-40 सेकंड में मैं हंसा सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस को। तो ये अल्लाह ने जो मुझे सलाहियत दी है, इस ह्यूमर को मैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल बिकॉज आई वॉज एन आरजे। तो मुझे लगता है ह्यूमर मैंने अपने इस कोविड में अपने आप से ढूंढा। खुद ही सेल्फ जो होते हैं, कहते हैं खुद को ढूंढना, मैं इस जर्नी में खुद को भी ढूंढ पाया बिकॉज ऑफ रेडियो, और मैंने लोगों को जो दिया एज ह्यूमर, एज मेडिसिन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yeah, so we've understood, why he makes the content he does, especially pertaining to the Kashmiri community, and of course, talking about humor as one of the elements, critical elements in communicating health. So moving on to Divya. So Divya, since you've been doing a lot of programs on menstruation, on sexual and reproductive health of women, right? So we would like to know that pre-COVID and post-COVID, have you seen the change in listenership, in the kind of people who now engage with your content? And if that has also resulted in the way you create content now? Okay, tricky. Thank you for the question, and that story is very inspiring. So women health is just part of what I do. तो like he said, humor, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए रेडियो होस्ट हम जो भी प्रोग्राम करते हैं वो अगर हम कुछ और बन के करेंगे तो वहीं पे मिस हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं वन सक्सेस क्वालिटी दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस कैरी इंडिविजुअली, एंड वी बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट लॉन्ग, मतलब सब लोग को एक्सपीरियंस है। उसका एक रीज़न ये है कि हम जो रियल लाइफ में हम वही ऑन एयर है। मतलब हम विद्या बालन की तरह मुन्ना भाई में आके गुड मॉर्निंग दिल्ली नहीं करते हैं। लाइक थोड़ी देर पहले आशीष बोल रहा था कि ये करके दिखा दो, मेरे खुद के रिलेटिव्स आज बोलते हैं एक बारी बोल के दिखा दो, ऐसे ही तो बोलते हैं। आई टॉक लाइक दिस ओनली। मैं भी शो करते करते ऐसे लग रहा है कि शो कंटिन्यू हो रहा है आगे। So what change happened? The biggest change that happened was last time when I came on this festival 2 years ago, I used to host a show called 11 से 2 माँ बहन का शो, एंड देन केम अ पैंडेमिक। वो शो 8 साल से ऑन एयर था और बहुत पसंद किया जाता था। मतलब मुझे याद है सलमान खान को जो मैंने नाम बताया था शो का, वो सोफे के एज पे बैठे थे और वो गिर गए थे हंसते हुए कि तुम्हारे पापा को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा पापा की माँ और बहन दोनों हैं, माँ बहन के शो में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपका जो भी कॉनोटेशन है वो आप बनाओगे ना। मतलब मेरे लिए माँ बहन हैज़ नेवर बीन गाली, ऑल्दो हम सब माँ बहन का शो बोलते पहले वही समझते हैं, दिल्ली है ना क्या करें। But my point is, माँ बहन का show was about the women, and the moment you start initiating a dialogue about something, तो आपको थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं, whether it's with the name, because you have to hit the audience. What was the biggest change जो मुझे लगता है मैंने well-being के लिए किया, वो ये कि
when there was a pandemic that hit, there was also a personal pandemic that I was going through. My separation was on. और मुझे लगता है जब अपनी लाइफ में आप कुछ जी रहे होते हो और जब रेडियो पर आकर आप शो करते हो, अगर आप फेक करोगे आप अपनी ऑडियंस खो दोगे. मेरी ऑडियंस मेरे साथ चलती है. आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू बी हैप्पी. आई एम अ पर्सन हु लव्स टू लाफ. तो नो मैटर व्हाट पैंडेमिक और पैंडेमिक 2 I was living in, I was being myself. There have been days when I've cried on this show. The moment I stay that way, people connect because it's a simple thing. Breakup सबका होता है, दिल सबका टूटता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, whatever that line is. तो जब मैं ये चीज़ सीरियसली बताती गई, लोग जुड़ते गए. द बिगेस्ट चेंज दैट हैपेंड वाज कि मैंने अपने एक बहुत सक्सेसफुल शो विच इज़ कॉल्ड 11 सितों मावे इनका शोज को टोटली चेंज किया. एंड आई मेड अ न्यू शो लास्ट ईयर ऑन October 4th दैट वी लॉन्च्ड विच इज़ कॉल्ड टेक इट ईजी विद दिव्या. एंड नथिंग चेंजेस. पैकेज वही है, लड़की वही है, बातें वही हैं, अभी भी हमारी हाँ ही सेम चीज़ पर थी. बट द होल आइडिया इज इट वर्क्स लाइक एफर्मेशन. मैंने ये सुना है एस्ट्रोलॉजी में कि जब आप वो कायनात, शाहरुख खान ने बोला, आप यूनिवर्स को बार बार एक चीज़ कहते हो वो आपके लिए करती है. I realized that the moment I started saying every morning, hi guys, this is Take It Easy with Divya, the first thing that happened was that I started taking it easy in my own life. हर रोज जब मैं शो करने आती हूँ मुझे पता है कि no matter what happens, I've left it outside. 3 घंटे अब मुझे शो करना है. I talk about everything that I feel, I realize, I learn. मैं जिन चीज़ों पे हंसती हूँ, गिरती हूँ. There are days जब मैं शो करते करते कुर्सी से गिर जाती हूँ. तो मैं, क्योंकि मैं बहुत, मेरे लिए ना यहाँ बैठ के ये शो बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसके हाथ ना चले. मतलब आई वाज थिंकिंग मैं वहाँ खड़े होकर बोल लूँगी, तो मतलब बड़ा मुश्किल है एक जगह बैठना. बट आई एम लाइक दिस. लाइक आज मैंने शो पे पहली चीज़ ये बोली, यार मैं ना कुछ सैटरडे को बहुत चिल करके आई हूँ और मुझे सच में नहीं याद क्या किया है. यू नो देयर आर मोमेंट्स लाइक दिस कि आपको कल का भी याद नहीं होता है. आई एक्चुअली सेड मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने सैटरडे क्या किया है. And then I was like, maybe aging problem. Dude, it's fine. When I talk like this, one, age shaming, body shaming बहुत subtly touch होता है. I am getting older. And it's cool to get older. Let's address it that way. I don't want to be an 18-year-old. Let's accept us the way we are. रेडियो ना बहुत पावरफुल मीडियम होता है. जो चीज़ पहले पैनल में भी मैं कहना चाहती हूँ, रवि भी, हम लोग एज से नहीं चलते, हम लोग दोस्ती से चलते हैं. And that's the reason why there are RJs who are probably 45 plus, 50 plus. There are RJs who are 20-year-old. बट जिसने आपके साथ वो दोस्ती का कॉर्ड पकड़ लिया, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी काम कर जाएगा और वो आपके फिजिकल हेल्थ पे भी. एंड टॉकिंग अबाउट लव, आई टेल यू बिकॉज most of these guys who do the show in Delhi are my friends. The guys with the most spoiled, screwed up love life makes the best love gurus. किसी भी स्टेशन में जिस इंसान का सबसे गंदा दिल टूटा होगा वो सबसे अच्छी लव एडवाइस देगा, क्योंकि पत्थर पे चल चुके होते हैं ना. तो हम आपको वाले पत्थर पहले बता देते हैं यहाँ पे मत चलना. जैसे मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा है, डिवोर्स गुरु दिख रहा है मुझे एक बनता हुआ अंदर अपने. बट द पॉइंट इज, इफ आई विल नॉट लाफ एट इट, हाउ विल आई मेक पीपल ईज आउट इन देयर लाइफ? Life isn't easy for anybody, not for me, not for you. So let me do a show that makes life easy for both of us. And that's my idea of radio, has always been. Interesting. And of course, very, very honest, Divya, as usual. So Sulakshna, we have Sulakshna with us. And Sulakshna, you have very, very rich experience of content and communication in health as well. So when we are talking about well-being, when we are talking about emotional health and physiological health, especially after the viral outbreak, how do you look at use of issues? I mean, what are the kind of issues you would identify as critical content to have conversations with the people? Which is that interactable issue which you pick up? Especially, you know, if we say, leave aside COVID for a minute, then what kind of content will you create on health? Thank you so much for the question. Before I answer what you have asked me in specifics I go into, I just want to say that all these RJs who are sitting here, or who were sitting here earlier, or who are sitting in the audience right now, I've been a performer myself, and we are human beings. And we undergo lots of stress each day, be it stress of performing well, be it stress of your parents not keeping well, be in your own relationship, be a fight with your best friend, be a cunning neighbor around you, or a landlord who is like asking for lots of things everyday basis. And still, on air, we make each and everyone smile. That is in itself a very big thing, that we are those wellness experts. Because each day we overcome our own fears and we let be that happy-go-lucky creature
on air where people feel that oh यार इसकी लाइफ में भी चल रहा है, जैसे स्वाति ने बोला, it's मतलब ये cool होगा, right? And I feel with radio first, especially for private FMs, we are entertainers, and entertainment in itself is a wellness route, you know, because no matter how much stress you have, if you're listening to your music, if an RJ is saying such a beautiful thing, so it is lightening up all the stress in your life, and that is where somebody connects with the RJ. Now I'll just take 1 minute on my own experience. I have experienced both sides. So when Ginny said, are you from the management to somebody? I think so it was you. I had few questions from the management perspective, but then I have been an RJ myself. I have been an anchor, and Akashvani Shimla mein when I started my career with, and before that I used to do Yuvani के shows जो 6 ड्यूटीज मिलती थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे. तो 1999 या 2000 की बात है. एज अ यंगस्टर ऑफ 18-19 years आई वाज देयर, एंड एक वहाँ पे बोर्ड लगा है लकड़ी पे, लिखा हुआ है मैं रेडियो में शक्ति देखता हूँ, महात्मा गांधी. And that line, as Nasir said earlier, was so powerful कि रेडियो में जो शक्ति है वो है. And I started believing it, and वो शायद manifestation होगा. When we launched Chandigarh, and I happened to be the first RJ of commercial radio station of Chandigarh, I used to go on air as Muskan. So my show was the morning show. And, you know, we generally say certain things which we believe in also. And at times, you know, just कि बोलना है कुछ अच्छा बोलना है कुछ, you know. And there was a Friendships Day special show. और मुझे उस दिन ऑन एयर एक हंसी खुशी वाला दोस्ती यारी वाला शो करना था. एंड जेन्युइनली आई फील दैट, बट स्टिल आई सेड ऑन एयर दैट अगर आपको कोई नहीं सुन रहा दुनिया में, ये मेरा नंबर है, यू जस्ट गिव मी अ कॉल एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं से हम लोग मिलके अपना सोल्यूशन निकाल देंगे, क्योंकि दोस्त इसीलिए होते हैं. वो एक छोटा सा 1 minute 20 second का जो लाइनर था, I did not know that was game changing for me, and that is why I believe that radio is a very important medium for wellness. After I did my show, 2 या 3 बजे के आसपास एक लेडी आती है अपनी बेटी के साथ, and she hugs me because I was a producer also, so I used to tell, मैं मिलती नहीं थी हर एक से because वो मुस्कान और सुलक्षणा मेरे को मेंटेन रखना था as a hidden identity that time. So कहते वो सिक्योरिटी गार्ड जी आए, उन्होंने बोला मुस्कान मैम वो कोई मिलने आए. तो मैंने कहा कौन है? कहते एक लेडी है और उनकी डॉटर है साथ में. सो आई वेंट आउटसाइड एंड उन्होंने बोला अच्छा आप मुस्कान हो? आई सेड हाँ, हिचक के साथ मैंने बोला. शी हग्ड मी एंड शी क्राइड, एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट. आप लोगों को अनबिलीवेबल कई लोगों को लग सकता है, बट दिस इज वेरी डियर टू मी. उन्होंने शी हग्ड मी, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड मैं कान्हा जी से, जब आपका रेडियो पीछे चल रहा था, आज आपने ये बात कही, मैं कान्हा जी से ये दुआ मांग रही थी, मतलब हाथ जोड़ के खड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी. उसको फैमिली प्रेशर, डाउरी इशू, एंड हस्बैंड वाज बैशिंग हर एंड ऑल. शी वाज रियली फेड अप ऑफ हर लाइफ, एंड शी सेड आपका रेडियो मेरे हस्बैंड सुनते हैं, तो बैकग्राउंड में आपका शो चल रहा था और मैं कान्हा जी से बोल रही थी कि मैं अब बस जाने लगी हूँ, मेरे बच्चों का आप पीछे से ध्यान रखना. एंड ही सेड कि शी सेड कि जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मुझे सच में ये लगा कि ये इंडिकेशन है कान्हा जी से, बिकॉज आई सेड लाइफ इज ब्यूटीफुल, कुछ भी हो सकता है. हम नॉर्मल आरजे के तरीके पे जो बात की, एंड दैट वाज द थिंग. शी गॉट हर डॉटर एंड शी सेड आई एम रियली थैंकफुल कि अब मैंने, वो मोमेंट होता है आरजे, उस मोमेंट में जो बोल लेता है वो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है. और अगर आपको 100 लोग सुन रहे हैं, उसमें से एक भी लाइफ आप बचा पाएं और बचा सकें, वही आपका सक्सेस रेट है. सो then of course you said now coming back to that thing was about strategy, how you plan for wellness and how do you decide on the shows. Now there are so many issues prevalent. The data, most of the RJs do not, sorry to say, please don't bash me later, they don't believe in data, right? But even I never used to believe in data when I was on the other side, but when you see the data, you find out. अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ आया, वर्क फ्रॉम होम इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं. नाउ यू सी दैट एज अ न्यूज़ कि क्या कंटेंट हो सकता है. नाउ देयर आर 2 ways, या तो उसको सीरियस इंटरव्यू में दे दो मॉर्निंग शो पे कि कंटेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री के किसी को ले लो, सर इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक जोन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है और क्यों है. या उसको एक ऐसा मीडियम दे दो कि वर्क फ्रॉम होम वो अलाउ कर रहे हैं 50% और लोगों को. बाय द वे, बिग एफएम इज द ओनली स्टेशन विच इज स्टिल ऑपरेटिंग
100% work from home model. All my RJs are working from home till now after pandemic, and they're still, you know, every day in that same scenario, same घर का cabin कहीं पे वो show कर रहे हैं. Still they are doing it, so I really want to say thanks to all of them. तो आप ये decide कर लो. तो then what we did was, we took a psychologist, and we also took a HR expert. For all those working class people, so we thought कि इस content को हम ये angle दे सकते हैं कि psychological impact एम्प्लॉयज पे जो था कोविड टाइम्स में, उससे वो बाहर आ चुके हैं क्या? आर दे रेडी टू कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं? वो हमने एचआर से पूछा. सो वी बैलेंस दैट थिंग. सो एनीबडी हु वाज लिसनिंग, सो द लेडी ब्यूटिफुली सेड कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए बून साबित हुआ है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल शी वाज मीटिंग, बिकॉज बच्चे को छोड़ना ले जाना, she can manage the child around. Otherwise, nana nani ko request kar rahe hain, dada dadi ko request kar rahe hain. You know, there's nobody in the house to take care of a child. But at the same time, the male was totally this thing कि दिन रात बच्चों की पैं पैं सुनना. You know, अब बीवी बैठे होते हो फ्री में, थोड़ा सा भी अगर रिलैक्स करो तो वो बोलते जाके ग्रोसरी ले आओ. I think so work from home होना ही नहीं चाहिए. You know, so we bought both the aspects together, which may lead to companies framing policies basis the comfort of the employee and their mental well-being कि वो हो सकता है कि नहीं. I feel very proud. We started a show called धुन बदल के तो देखो with Sadhguru on radio, and I mean when I say my whole entire Delhi team, we were the key who was sending that show. Now how to convince a global personality and his team कि रेडियो इज इफेक्टिव, बिकॉज रेडियो को सब लोग ये मानते हैं कि अब तो डिजिटल पे सदगुरु है, पॉडकास्ट पे है, वो क्यों रेडियो करें एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो वेलनेस एंड वेल बीइंग उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड वी वर्कड अ लॉट ऑन दैट. देन देयर वाज एन इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. वो कोविड टाइम में ज़रूर बढ़ा, लेकिन उससे पहले भी था. So I'm sure Swati takes those issues with her listeners, and she really bashes the society for, you know, taking a wrong stand. So what I'm saying is that data is already available. How you use data for the interest of the listeners, that is where strategy comes, and that is where the content planner comes with the inputs of RJs. Believe you me, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती रेडियो पे जो एक RJ के persona, उसके comfort level के beyond हम करते हैं. We try. I mean, इससे पहले जितने भी लोग यहाँ थे, there were few RJs who said that, you know, it is being imposed on them, it is being imposed on them. It is not being imposed on them, the digital thing, because we are not MF Husains who makes a painting one fine day and gets a 5 crore rupees of that painting और उनका 3-4 महीने का खर्चा निकल गया. We also have to understand we are creative professionals. प्रोफेशनल्स मीन्स हमें एक तो समय के साथ चलना है, मार्केट में जो बिक रहा है उसको हम कैसे बेच सकते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी है. तो अगर वेलनेस चल रहा है तो वेलनेस की बात है, क्योंकि आज हर एक बंदा स्ट्रेस्ड है. अगर ब्यूटी चल रही है, अच्छे लुक्स की बात है, विच मेक्स यू लुक बेटर, बहुत अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो हमें वो कंटेंट इंटेलिजेंटली क्रिएट करना है लोगों के लिए. सो दैट इज हाउ द स्ट्रैटेजी इज प्लान्ड. एंड जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लोग भी हैं, यूनिवर्सिटी से जो लोग आए भी हैं, I just a suggestion from my end is we should never ever forget that a lighter wellness, हर एक चीज में वेलनेस है, चाहे वो गाने में है, चाहे किसी को सॉन्ग डेडिकेट करने में, चाहे किसी के लव के सिचुएशन को हैंडल करने में. आप हर एक चीज में वेलनेस देखेंगे. वो जो कनेक्ट स्वाति का हर एक के साथ है या दिव्या का हर एक के साथ है, वो रहेगा ही रहेगा. इट विल नॉट गो एनीवेयर. So that is what I want to say. It took time, but I think so it was helpful for all of you. Very well explained, Sulakshana, and a beautiful point which you put across is the importance of data. How we need to sift through data to gather critical insights, and how we need to use those critical insights in creating content. And that is where I guess we educators in the media departments, community radio stations which are being run by various universities and the private broadcasters, all of us can come together to re-establish our faith in data. You know, Divya seems to have lost faith in data, and we don't have a choice.
So as much as वो meetings हमारी होती हैं जिसमें numbers दिखाए जाते हैं, basically it's like a class monitor saying, भाई देखना तो पड़ेगा ही. So you can either put your earplugs and pretend that you're watching. You have to follow it. I'll tell you, I said I never used to believe in data when I was a performer myself. मुझे लगता था मुझे इतने कॉल्स आते हैं, मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं, मेरे इतने SMS आते हैं, इतने WhatsApp पे आते हैं. Data says this. एंड व्हेन यू सी कि ओवरऑल यूनिवर्स जो है, ओवरऑल लिसनरशिप रेडियो के अगर 2 करोड़ लोग अगर दिल्ली में रहते हैं, अगर 1 करोड़ कुछ है, तो मैं उस टाइम पे कहने लगी थी जब सोशल मीडिया की बात हुई कि हम क्यों बनाएं. हम इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, हम में से कितने लोगों को पता है कि एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स जो रोज अपना कुछ ना कुछ बना रहे हैं डिजिटल पे, वो कितने हैं इंडिया में? चलो ग्लोबली नहीं बोल रही. वी डोंट नो डेटा. 32,000 प्लस के आसपास हैं, अब वो नंबर बढ़ता जाता है. एंड कितने लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं? सबको लगता है अरे बहुत बड़े पैसे हैं इसमें. कितने लोग हैं पैसे कमा रहे हैं? 1200 पीपल ओनली. और जो बाकी जो उसमें आते होंगे, जो 2-3 हज़ार और आते होंगे, वो पेमेंट्स लाइक 500 और यू नो वी थिंक कि अरे लाखों रुपया कमा रहे. लाखों के अलावा भी जो कमा रहे हैं वो बहुत कम कमा रहे हैं. सो व्हेन वी डू नॉट हैव डेटा, वी डू नॉट हैव वी निग्लेक्टेड कि है ही नहीं, तो वो चीज नहीं हो सकती. कि वो है कि कौवा जो है वो आंख बंद करके बैठा है और बिल्ली आ रही है, वो मान नहीं रहा कि बिल्ली आएगी कभी. सो आई फील दैट थ्रू सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड वेरी ब्यूटिफुली फॉर वेलनेस, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इवन योर पर्सोना क्रिएशन, हर एक चीज में. और रेडियो और डिजिटल जरूर आज के जमाने में आएंगे. जब हमने पिछला सेशन वाइंड अप किया तो सबने ये बोला हमें फॉलो करें, द रेडियो फेस्टिवल. आरजे ने बोला हमें फॉलो करें इस पेज पे. नन ऑफ देम सेड डू ट्यून इन एवरी डे at 11 and listen to my show. So that means even if we are neglecting the data, we have to follow the data. So yeah, sorry I took Absolutely. 11 बजे सुनना रेडियो सिटी. So Rohan, now coming over to you. So we've spoken about various, initiatives taken by various broadcasters. Any campaign that comes to your mind, which you found was which had strong connect with people, especially the age cohort which has not been taken care of, let's say senior citizens, or a much younger pre-teen group. सो आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन. आपने जिस कैंपेन की बात करी, उस कैंपेन ने बहुत लोगों की मदद तो करी एंड आई थिंक मेरी लाइफ भी बहुत चेंज करी. सो आई विल टॉक अबाउट दैट कैंपेन. इट वाज नो साइलेंस प्लीज. सो बेसिकली नो साइलेंस प्लीज वाज फॉर द किड्स. जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके वो मेंटल प्रेशर है, तो उनको हमने काफी हेल्प करी, उनसे बात करी, साइकेट्रिस्ट से कनेक्ट कराया. बट द बेस्ट पार्ट दैट हैपेंड वाज कि जब साइकेट्रिस्ट ऑफिस आते थे ना, सो इट वाज अ लाइक 2 वीक लॉन्ग कैंपेन. हर रोज कोई आ रहा है, सो आ रहे हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ. एंड वन डे इट स्ट्राइक मी कि यार ये जो बोल रहे हैं तो मेरे साथ भी हो रहा है. मतलब दे आर सेइंग कि सिम्टम्स आपको ऐसे होते हैं फॉर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, आपको ऐसा लगता है वैसा लगता है. मैं दूर खड़े सुन रहा हूँ, यार ये हर चीज मेरे साथ हो रही है. बट मैं किसको बताऊं? मैं ऑफिस में बोलूंगा मैं डिप्रेशन में, बोलेंगे पागल है तू, कैसे डिप्रेशन में, तो खुश रहता है पूरे टाइम. घर पे बोलूंगा वो बोलेंगे कि तू पागल है, ऐसी कुछ चीज ही नहीं होती, क्योंकि टैबू है. सो देन वन डे द डॉक्टर केम. मैं उनको साइड में ले गया. मैं कहता रहा, मैं कहा जो आप बोल रहे हो ना मेरे साथ भी हो रहा है. मैं क्या करूं मैं? तो वो बोलते बैठ के आराम से कि रोहन एक बात बताओ, जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है तुम फिजिशियन के पास जाते हो, हड्डी टूटती है ऑर्थो के पास जाते हो, दिल में दर्द होता है तो कार्डियो के पास जाते हो, तो दिमाग में दर्द होता है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में क्या दिक्कत है? सो मुझे लगा हाँ. मैं कहा लेकिन लोग मुझे पागल बोलेंगे. कहता कोई पागल नहीं बोलेगा. कह रहा साइकेट्रिस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि वो सिर्फ पागलों का इलाज कर रहा है. उसका मतलब ये है कि आपको एक बीमारी हुई है दिमाग में, जिस बीमारी का हम दवाई देके इलाज कर देंगे. सो देन मुझे बात की हुई. तो कैंपेन खत्म होने के बाद मैं खुद डॉक्टर के पास गया, उससे पूरी ट्रीटमेंट लिया. एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब हमने मेंटल हेल्थ की बात करी बच्चों के लिए, तो वो कितनी चीज मेरे से भी कनेक्ट हो रही थी. ऐसे कितने लोग होंगे जिनको पता ही नहीं ये बात कि जो सिम्टम्स छोटे छोटे हमारी लाइफ में चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा, मैं किसी थॉट्स में हूँ, तो ये चीजें तो हो रही हैं, बट हम बात ही नहीं कर सकते किसी से इसके बारे में. बिकॉज जैसे ही मैं बात करूंगा सामने वाला है तो हंस देगा या बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता. आई ट्राइड टॉकिंग अबाउट दिस विद माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा हो रहा है. तो सही से सो नहीं रहा, ज्यादा फोन पे मत लगा कर. तो उनके ऐसे सोल्यूशंस हैं. उनका ज्यादा होगा नींद पूरी कर ले, मतलब उनके आंसर्स इसी के अराउंड होंगे. दे वोंट इवन एक्सेप्ट कि डिप्रेशन और एंजाइटी इज समथिंग दैट इज रियल. एंड मैं भी नहीं मान रहा था उस बात को. मैं गूगल पे पढ़ता था, वो बोलता था कि मे बी यू आर एंग्शियस, मे बी यू आर डिप्रेस्ड. मुझे तो मैं तो किसी एंगल से डिप्रेस नहीं हूँ.
पूरे दिन मैं घूम रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो है. बट देन आई थिंक दैट कैंपेन, दैट नो साइलेंस प्लीज, उसने कितना इम्पैक्ट और लोगों पे किया होगा, आई कैन सिंपली कनेक्ट, बिकॉज मैं खुद हु वाज अ पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, इट चेंज्ड माय लाइफ. क्योंकि मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया एंड देन आई रियलाइज कि मेरी लाइफ 6 महीने पहले क्या थी एंड 6 महीने बाद क्या हो गई है. सो वन कैंपेन जो बैक साइड ऑफ द रेडियो मेरे लाइफ चेंज कर रहा है, वो हजारों कितने लोग होंगे जिनको सुन के उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा होगा. सो आई थिंक दैट वाज वन कैंपेन दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड वेरी स्पेशल फॉर द स्टेशन एज वेल. I just wanted to add because we were talking about campaigns. जब COVID आया था, I remember COVID first wave में ना ऐसा लगता था कि अगर हम बोल देंगे हमें COVID है तो लोग कुछ कर लेंगे. People were hiding their COVID status. लोग बताना ही नहीं चाहते थे कि हमें COVID है. And I remember मैं first wave में मुझे COVID हुआ था और मेरे घर वाले अपने relatives को भी नहीं बताना चाहते थे that you know I'm already down with COVID and obviously we were working from home. I worked throughout 23 days that I was down. मैं negative ही नहीं हो रही थी, 4 टेस्ट positive थी. But I worked throughout because मुझे लगता था मैं शो करने के लिए एटलीस्ट उठूंगी. And in that journey I made sure that I keep talking about it कि मेरे को ऐसा हो रहा है, आज मेरा symptom ये है, मेरे exaggerated symptoms हुए थे थोड़े से. And I realized because of that, एक तो मेरे रिश्तेदारों ने मम्मी को बोला आपने हमें बताया ही नहीं क्योंकि उन्होंने रेडियो पे सुन लिया, तो एक वो नुकसान हो गया. दूसरा मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया, मेरे कजिन्स ने देखे अपने घर पे, बोला मेरे घर पे खाना शुरू हो गया और अभी तक हमने बताया नहीं था. इट वाज स्टिल हश हश. But the point is, I couldn't understand why are we hiding it? Like, what was the point of hiding that I have COVID? So I started, and like him, इसने तो पूरा campaign किया. What I do is, it's a very simple thing. हम रेडियो पे जो लाते हैं उसको, like ma'am said, आप how do you treat something is our job, right? मैं psychologist या therapist को लाने के बजाय, whatever I am told, because I seek therapy, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, so whenever I have my off days, I call her and I talk to her. One, पहले ये चीज भी एक टैबू होती थी, थेरेपिस्ट, लाइक ही सेड, पेरेंट्स के लिए मानना, लाइक द मोमेंट आई वुड से कि आई हैव ब्लैकआउट्स व्हेन आई एम ड्राइविंग, सो आई एम नॉट गोना ड्राइव फॉर अ व्हाइल, एंड आई डिड हैव दोस ब्लैकआउट्स. मुझे अभी भी 3 हफ्ते हो गए हैं, मैंने शायद एक बार गाड़ी चलाई है, बट इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट, इट्स लाइक ऑफिस स्ट्रेस, ये लोगों को होता है. फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इसको ऐसे ही प्रेजेंट करूंगी, जो थेरेपिस्ट मुझे बोलती है उसको मैं अपने स्टाइल से, हाउ आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, एंड आई थिंक मेरे साथ सब यही बोलते हैं कि मैं एक 60 साल के साथ 60 साल वाली और 20 साल के साथ 20 साल वाली हो जाती हूँ. आई नो हाउ टू मेक माई वे थ्रू इन दैट कॉन्वर्सेशन. तो वो चीज़ हम ले आते हैं, एंड मुझे लगता है जब तक पर्सनल टच नहीं होगा, सिर्फ गूगल से पढ़ के, किताब से पढ़ के एक जॉक बोलेगा, वो कॉन्टेंट ही होगा. द मोमेंट हम लोग अपना पर्सनल टच लाते हैं, वो रेडियो होता है. We have to be us to do radio. Otherwise, तो Google है. And social media, like all of them have been saying, and पहले भी, it's a beautiful tool. I will always say that radio करना बहुत मुश्किल है. Social media और radio को balance करना और भी मुश्किल है. And I think we have to give it to all the radio jockeys because whether it is for numbers, whether it is for ourselves, I enjoy the camera. मैं सेल्फी क्वीन हूँ अपने ऑफिस की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. But it's not easy to maintain that balance. This guy is super cool with it though. But kudos to all the jocks. I just wish to add one more thing. उन्होंने बात करी, बहुत अच्छी बात बोली. मैं आपको बताता हूँ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक हफ्ते तक मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी. माय ग्रैंडमदर वाज इन हॉस्पिटल एंड वी हैव टू रश एवरी डे एंड देन हैव टू कम बैक एंड डू द शो. आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट. मुझे कुछ कंटेंट करने का उस दिन मन नहीं था. मैंने यही बोला रेडियो पे कि आज मैं इतना परेशान हूं ना, मतलब आई फील लाइक क्राइंग, बट हंसाना है आपको तो हंसाऊंगा. मतलब इट वाज अ वेरी नॉर्मली टोल्ड स्टेटमेंट एंड निकल गया मैं. एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग एंड वो मुझे क्या बोल रहे हैं सामने से, भाई क्या दिक्कत है आपको. मैंने कहा यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप ये सुनो हमारे साथ क्या चल रहा है. एंड देन दे टोल्ड मी कि मेरी जिंदगी में तो ये चल रहा है. एंड देन वी बोथ लाफ्ड कि ऐसे ऐसे करके. एंड मेनी पीपल कॉल्ड एंड दे सेड कि आपकी जिंदगी में ये, बट मेरी जिंदगी में ये भी है, तो आप परेशान मत हो, हम भी जी रहे हैं, आप भी जियो. सो आई थिंक इट्स लाइक एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम बट वी नीड टू एड्रेस. और हम लोग हंस रहे हैं उसके बाद. इट्स लाइक क्योंकि मेरा शो इवनिंग शो है तो हम लोग उसको सीरियस नहीं रखते. वी हैव टू लाइक पुल आउट द फन फ्रॉम इट. सो उनकी बातों में से किसी ने बोला वाइफ से लड़ाई हो गई तो आपने कुछ लेके नहीं आए होंगे ना उनके लिए इस चीज पे, तो हमने मस्ती निकाली. देन दे आल्सो लाफ्ड, आई आल्सो लाफ्ड एंड इट वाज लाइक अ थेरेपी दैट हैपेंड. मेरा कोई प्लान नहीं था उसे करने का, बट वो हमने शायद 2-3 लिंक्स तक उसको एक्सटेंड किया, इतनी सारी कॉल्स आई. सो आई थिंक इस चीज को एड्रेस करना ही बहुत जरूरी है रेडियो पे. दैट सबके पास प्रॉब्लम है, हम भी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, बट वी कीप ऑन एंजॉयिंग. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. So, connect, bond, keep on enjoying, keeping it light. Different kinds of content has been talked about here in the context of health. One question which always bothers us, especially as educators, is the veracity of content, especially in the context of health. There's been a lot of misinformation. Social media, especially, messenger applications like WhatsApp has been providing so much information, and most of it is spurious. Most of it has its own problems. So when you are looking at this integrative role of radio and social platforms,
then how do you look at, this misinformation or at times disinformation with regards to health, pandemic or no pandemic, as a radio jockey? I think radio as an industry has a power because it has local stars. जब वैक्सीन के हवाले से बात की गई तो ये कहा गया कि सबको बोलिए कि वैक्सीन लगवाएं. अब रेडियो के पास ये ताकत है, पहले तो आपके पास क्रेडिबिलिटी है, आपके पास आरजेज हैं जो लोकल स्टार्स हैं. कश्मीर में मैं कश्मीरी में बोला कि कैसे वैक्सीन लगवाया जाए, साउथ में उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, पंजाब में अपनी लैंग्वेज में बोला, असम में अपनी लैंग्वेज में बोला. तो ये ताकत किसी और मीडियम के पास नहीं है. टीवी के पास नेशनल स्टार्स हैं, रेडियो के पास हर शहर में अपना एक स्टार है जिसको लोग सुनते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी है. तो वो मिस इन्फॉर्मेशन को सही करने में, दुरुस्त करने में या फैक्ट चेक करने में बहुत कारगर जो है अपना रोल निभा सकते हैं. दे कुड बी वेरी यूजफुल. बट द ओनस ऑल्सो लाइज ऑन रेडियो प्रेजेंटर्स लाइक अस, क्योंकि कभी कभी 11:30 बजे उठे, 12 बजे शो है, 11:15 चले गए और कुछ भी बोल दिया. द ओनस लाइज ऑन अस कि हम जब बात करें तो हमें मालूम हो. ठीक है, हमारा स्टाइल बहुत लाइट हार्टेड होता है, हमको उस चीज़ का ख्याल रखना होता है, लेकिन there should be layers to what we say. There should be layers even in our funny content, which should be well thought through. तो ओनस है हम पे. तो कभी कभी गलती भी हो जाती है किसी रेडियो प्रेजेंटर से, कभी कभी गलती हो जाती है सोशल मीडिया पे, गलत बात बोल देता है या किसी ऐसी चीज़ जो आगे आ रही होती है, अगर व्हाट्सएप पे या छोटे छोटे लोगों ने शेयर की है जिनके 100 फॉलोअर्स, अगर एक रेडियो जॉकी रीट्वीट कर दे विदाउट वेरीफाइंग, so there is a very big onus on radio jockeys. Having said that, हमें काम करना चाहिए fact checking में. I think any radio jockey, if he or she has a segment in their show, in their own ways, in their own personas, इतना misinformation है कि this could actually be a segment for any radio show to debunk it in your own way. इन्होंने जैसे कोविड के हवाले से बात की, when I got COVID this year, तो पहले 1-2 दिन हेलुसिनेट कर रहा था, परेशान हो गया, तो 2 दिन के बाद तबीयत ठीक हो गई. और उसके बाद वो हुआ जो बहुत अरसे तक मैं चाहता था. मैं बेड में नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ और दरवाजे पे खाना मिल रहा है. सो आई एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. तो बड़ा मजा आ रहा है, ऑफिस से भी कोई तंग नहीं कर रहा है. सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अराउंड इट. बट मुझे पहली वेव में नहीं हुआ कोविड, तो इस बार ही जब कोविड हुआ तो खास कुछ वैल्यू नहीं था, सबको हो रहा है. तो मैंने इस तरह कंटेंट बनाया कि देखो, मुझे कोई पूछता भी नहीं है. पहले दिन डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह घर वालों ने खरीदे, दूसरे दिन स्टील ग्लास में पानी आ गया. सो मैंने स्टील ग्लास भी दिखा दिया अपने कंटेंट में कि अब कोई वैल्यू ही नहीं रहा कोविड का. आप इमेजिन नहीं करेंगे, मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया कि द सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस. सो देन आई रियलाइज आई एम गोइंग अहेड विद माय ऑडियंस एंड मेकिंग देम रियलाइज दैट it's okay to have COVID, this is the new normal. तो उस तरह से ऑडियंस के साथ जब हम जीते हैं अपनी जिंदगी, जैसे इन्होंने कहा, और उसमें ये सटल चीजें जब आप करते हो ना, ये मैं आज मुझे रियलाइज हुआ जब मैं इधर बैठा था, उन्होंने बात की, आई रियलाइज दैट आई डिड दिस, मुझे अभी ये रियलाइज हुआ. तो आप पर्सनल टच से कुछ ऐसा कर जाते हो जो शायद आपको भी नहीं पता होती है. तो कभी कभी मुझे लगता है, एंड आई विल एंड विद दिस, कि आप एक कोई ड्रीमी लाइन रेडियो पे बोलते हो, या गालिब का कोई शेर पढ़ लिया आपने, कोई ड्रीमी फिल्मी लाइन बता दी, उसका ऐसा इम्पैक्ट होता है. और मुझे लगता है सोशल मीडिया पे उतना इम्पैक्ट होता है. रेडियो इज ऑल्सो दिस ड्रीमी मीडियम. आपने कोई एक बात बोली और किसी का डिवोर्स बच गया और किसी का हो गया, कोई सुसाइड करने से बच गया, और किसी बच्चे को आपने ऐसा मोटिवेट किया दैट ही एक्चुअली रोट द एग्जाम, और किसी को इतना डिमोटिवेट किया कि शायद हाथ ही काट दिया उसने अपना. आई विल नॉट गो टू द नेगेटिव्स, बट दैट वन लाइन हैज सो मच इम्पैक्ट एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. You yourself, we all should realize, all radio presenters should realize the power that we have. Yeah, Over to Adit. absolutely. And Sulakshana, how about you in terms of spreading the right amount of knowledge, the right kind of knowledge? So, जितने भी commercial radio stations operators हैं, जितने भी RJs यहाँ बैठे हैं, so whatever happens is basically basis mood mapping. One is that कि morning का show, जैसे आशीष ने बोला,
पिछले उसमें कि थोड़ा सा अब उनको चेंज लाना पड़ा बिकॉज मॉर्निंग इज सीरियस ऑडियंस. They want to listen to serious, not serious stuff in a lighter manner, but they want intelligent stuff, right? Then afternoon आ गया, lighter आ गया, वहाँ पे बातचीत होगी, थोड़ी चुगली होगी, थोड़ी gossip होगी, एक DDR format है, उसके ऊपर काम हो गया. That is dilemma, dispute and revenge. Huh? And then we have youth shows, then we have late night shows, evening shows and all. अब आप रेडियो की क्रेडिबिलिटी की सब लोगों ने बात की कि आज भी आरजेस को क्रेडिबल माना जाता है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन वी आर अनटच्ड विद न्यूज. आधे से ज्यादा लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं कि रेडियो पे न्यूज लाओ, रेडियो पे न्यूज लाओ. मैं बिल्कुल आई टेल माई मैनेजमेंट वी डोंट वांट न्यूज बिकॉज द डे न्यूज कम्स आर strength as an influencer, as a credible face, we lose on that. I mean, this is what my personal opinion is. Having said that, what we do on air is news only. जहाँ से भी जो न्यूज़ है, दीपिका पादुकोण को दिल्ली के रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन सबसे अच्छा लगा एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में, यू नो, दैट इज़ अ न्यूज़ फॉर एंटरटेनिंग न्यूज़. या दिल्ली में कुछ हुआ तो वो न्यूज़ है. वी पिक अप न्यूज़, बट वी हैव the beauty of individuality of an RJ presenting that news in a manner of a normal Delhi citizen or a Jammu citizen or somebody residing in say Bhubaneswar. Uski beauty ही ये है. So when we say that how authentic we make the content that is the differentiation I'm coming forward to. Morning में अगर हम वही content करेंगे जो बेसिक हाइजीन कहते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरी टीम करती है, दे बेटर डू. तो सो वेन एवर वी प्रेजेंट कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं या हेलमेट नहीं पहना लोगों ने तो बड़े रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं. नाउ मॉर्निंग माई खुराफाती नितिन द आरजे फॉर माई स्टेशन, ही विल से दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर 3 months बैक स्टेट्स दैट 1000 जो लोग जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली इज बिकॉज दे डिड नॉट वेयर हेलमेट्स. सो देयर इज अ ऑथेंटिक थिंग, ऑथेंटिक स्टडी विच सपोर्ट्स व्हाट ही इज सेइंग. आफ्टरनून में अगर कुछ होगा तो दे कैन इवन टॉक जनरली कि मान लीजिए इस न्यूज़पेपर में ये बात छपी थी या आज मैं ऑफिस में बात कर रही थी तो इन्होंने ये बात कही. इवनिंग में वो लाइटर वे में होगा कि भैया क्यों यूज योर हेड, कर लो दिमाग इस्तेमाल, है ना, क्यों करना है. सो इट विल बी सपोर्टेड बाय सम डेटा. The fabric will remain the same throughout, but how the RJ presents it basically bases the mood of the people. We want to give that message of wellness. We want to give them the message of, understanding is through that. So data, I feel, is everywhere. हम कहीं से भी न्यूज़ भी निकालते हैं तो भी बताते भी हैं लोगों को खाने को ऐसे डालो तो चीनी उसमें ज़्यादा डालो कम डालो, तो कहीं हमने दादी माँ के नुस्खे सुने हैं. So that's my data. So we feel that कि वो डेटा ही हेल्प करता है आगे कंटेंट को और उसको आरजी अपनी इंडिविजुअलिटी देख के पॉपुलर बनाता है. मुझे लगता है जो आरजेज होते हैं उनको ज्यादा मतलब नहीं होता डेटा से. वो दिल से बात करने वाले लोग होते हैं, वो ख्यालों के सौदागर होते हैं, वो जादूगर पर वो होते दिल से हैं. उनका एक्सपीरियंस कहाँ से और दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है. डेटा से ज्यादा दिल से जो बात निकलती Rohan and है Divya. वो असर रखती है. Just a short comment. But you can create an informed citizenry. So how do you there's a responsibility. As a I radio think, person, there's a responsibility. जैसे कि उन्होंने बोला, आई एग्री विद हर एज वेल, क्योंकि डेटा के अराउंड आपको बात करना बहुत जरूरी है. दैट विल क्रिएट द आपका एक वजूद बनाएगा कि इसको पता है इसके बारे में. ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा है. मतलब ही नोज, अगर ये रोड एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा है कि दिल्ली में इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट वाई ही इज टॉकिंग अबाउट वियर हेलमेट्स. अगर मैं सीधा बोल दूं जाओ हेलमेट पहनो, क्यों पहने? बट बिकॉज हेलमेट नहीं पहनने की वजह से पिछले 1 साल में 1800 लोग मरे, जिसमें से 1200 आदमी थे, 500 पिलियन थे, उनका ऐसे एक्सीडेंट हुआ. देन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार, ये तो मैं भी इसी तरह से जाता हूँ बिना हेलमेट के, इसी रोड से जाता हूँ, मैं भी शायद इस एक्सीडेंट का हो सकता हूँ. सो आई थिंक डेटा हेल्प्स, नो डाउट. और जैसे कि उन्होंने बोला हम दिल से बात करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ इट कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा सीधा उठा के 1300 लोग मरे. मैं ये बोलूंगा कि आपको पता है आपके घर में कोई इंतजार कर रहा है आपका, जिससे शायद आप आज रात ना मिल पाओ. क्यों? क्योंकि आप को ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि 1300 लोग रोज दिल्ली में मर रहे हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज द दिल से कनेक्शन, सेकंड पार्ट इज द नंबर्स. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. सो हम डिनाई नहीं कर सकते कि दैट कि वी डोंट यूज नंबर्स. And also, I don't want to contradict because, of course, that is the beauty of RJs कि वो दिल से बोलते हैं, but they also observe around.
their observation as a responsible citizen, they are reading news. तो अगर वो डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड में नहीं, डेटा कॉन्शियसली वो नहीं कंज्यूम कर रहे, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो कंज्यूम कर रहे हैं एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज हम लोग भी, हम कौन सा मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते न्यूज़ या कुछ ऐसे, वी वांट टू बी इन आवर ओन यू नो लिमिटेड सर्कल ऑफ एक्सपोजर, बट आई फील दैट हमारे एक्सपीरियंस, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमें बताए, इवन स्टोरीज, इवन सोसाइटी कैसे रहती है, ये ट्रेडिशन कैसे फॉलो करते हैं, ये खाना कैसे बनता है, बुजुर्गों के कैसे पाँव छूते हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ये सब एक इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई विल नॉट से डेटा पर से, बिकॉज डेटा फिर वो नंबर्स में आ जाता है, बट इंफॉर्मेशन तो फॉर श्योर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन व्हेन इन नंबर्स इज डेटा. ओके, आई जस्ट क्विकली सम इट अप. मुझे लगता है रेडियो दो चीज़ों पे चलता है, एक IQ और EQ. पर्सनली आई एम वेरी EQ ड्रिवन पर्सन. मुझे लगता है इमोशंस बहुत हाई सेल करते हैं. मैं घर जाऊंगी, मेरे को अगर अपने पापा को बोलना है पापा सिगरेट छोड़ दो, तो मैं पापा को ये नहीं बोलूंगी पापा 22,000 पीपल डाइड इन लास्ट ईयर एंड यू नो दिस हैपेंड. माय डैड विल बी लाइक गेट लॉस्ट. आई विल कम एंड आई विल क्राई एंड आई विल टेल हिम लिसन, ऐसा है कि मेरा फ्रेंड बीमार हो गया क्योंकि वो 4 दिन से सिगरेट पी रहा है, चाहे नहीं भी कर रहा हूँ, आई एम एक्टिंग, बट दिस विल वर्क ऑन माई फादर, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है यही मॉडल है जो मैं हर जगह रेप्लिकेट करती हूँ इन फ्रंट ऑफ माई बॉस ऑल्सो. अभी जैसे मुझे छुट्टी चाहिए है, मैंने डेट फिक्स मेरे मन में कर ली है एंड इट्स अ फैक्ट. मैंने प्रीमाइज सेट करना शुरू कर दिया है रोज. मेंटली स्ट्रेस्ड, फीलिंग रियली लो, ये काट दूंगी, बट द थिंग इज दे नो इट, आई नो इट, वेयर एम आई हेडिंग टू. द फैक्ट इज ही नोज or she knows, actually both of them, they know that I am stressed, but they're not noticing it. So what I've done, मैंने उसके आसपास एक थोड़ी फैब्रिकेशन शुरू कर दी है. अब यही मैं रेडियो पे करूंगी, है ना. इफ आई हैव टू गेट अ साइकोलॉजिस्ट टू टॉक अबाउट समथिंग, आई विल नॉट डू दैट. ये मेरा तरीका है. आई विल क्रिएट अ प्रेमाइज फॉर 2 days एंड से कि आई एम नॉट फीलिंग ओके, भाई मेरा नहीं चल रहा दिमाग ठीक, तो आज गाना सुन लो. मैं बड़ी छोटी इनपुट्स करती हूँ. खैरियत गाना चलता है, कौन सी पिक्चर थी वो, छिछोरे का. आई ऑलवेज से आफ्टर दैट गाना कि एक शब्द है जो लाइफ में हम किसी से नहीं पूछते, खैरियत. हम सीधा मिलके क्या बोलते हैं, तूने मेरा वीडियो नहीं देखा, अबे पहले पूछो तो हाउ आर यू. दीज आर माई वेज ऑफ टेलिंग पीपल. और यही हेल्थ है, ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ. रेडियो इज नॉट रॉकेट साइंस, इट विल नॉट चेंज द वर्ल्ड. रेडियो कैन ओनली स्टार्ट अ डायलॉग. इसीलिए चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे मेंसुरेशन जिसमें मैं काम करती हूँ, या ये बोलना कि भाई दौड़ लो जो मैं खुद नहीं दौड़ रही अभी, इट्स ओके, आई विल. बट द पॉइंट इज दैट हम रेडियो पे एक चर्चा शुरू कर सकते हैं अपनी पर्सनल कनेक्ट से. डेटा ड्रिवन, येस, इसीलिए आई थिंक ऑल आवर रेडियो स्टेशंस आर कहीं ना कहीं वर्किंग विद यूनिसेफ, वी आर ऑल कनेक्टेड विद WHO, ताकि जो भी फैक्ट्स आए हमें पता है कि हम जो फैक्ट शेयर कर रहे हैं वो सबसे वेरीफाइड सोर्सेज से आ रहे हैं. और अगर वेरीफाइड नहीं है तो एक बड़ा अच्छा हिंदी में वर्ड बोला जाता है, माना जाता है. तो माना जाता है, दिव्या बहुत अमेजिंग है तो माना जाता है, यू नो, इट्स दैट. सो माना जाता है इज बेसिकली एवरीथिंग फॉर अस, बट अदरवाइज देयर आर अथॉरिटीज दैट सॉर्ट ऑफ वैलिडेट द. बट आई थिंक पैकेजिंग की बात जो है ना, जिसे इन्होंने कहा EQ और IQ, इन्होंने कहा कि वो पापा को बोलेंगी सिगरेट के बारे में. कोई ये भी बोल सकता है कि पापा चलो आज एक साथ सिगरेट पीते हैं, पापा शायद छोड़ दें. सो द ट्रीटमेंट कुड बी डिफरेंट, बट इमोशनल क्वेश्चन पे ही हम टारगेट करते हैं. हम ज्यादा उसी इमोशन के ही डीलर हैं एज रेडियो जॉकीज. So I think so all of us agree, irrespective of being in an Akashvani presenter or a community radio station presenter or a radio jockey, we all go through a basic hygiene of a show, that is a prep. So anybody who follows the hygiene कि मेरे शो पे क्या जाना है, हम सीधा उठ के ऑन एयर नहीं जा रहे हैं. There is something which we have mentally planned in our mind, which is a beginning and the middle and the end of a link. Otherwise आप बोलते जाओगे, वो कोई डायरेक्शन खो देगा. आपने शुरू सरोजनी नगर की मार्केट से शॉपिंग का किया या डाल लेक पे एक वॉक का किया और सीधा वहाँ से खाने पे कब पहुँच जाओगे, कब आप फैमिली इशू पे पहुँच जाओगे, कब बच्चों की पढ़ाई पे पहुँच जाओगे, वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा. सो वन, फॉर आंसरिंग दिस नासिर, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. सभी रेडियो स्टेशन के RJs जो अनाउंसर्स है, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस कि एक प्रेप शीट बनती है जिसके बेसिस पे कोई फुली डिटेल्ड लिखता है और कोई पॉइंट्स में लिखता है. बट देयर इज दिस थिंग, आई एम कमिंग टू दैट. सेकेंड इज every RJ knows that they are not experts, right? That is why people like us are there. Otherwise you all are so talented, you don't require any guidance. Why should anybody guide you? Because you have the power of voice, you have the power of content, you have the power of engagement.
Why will anyone require somebody to guide you कि ये करो? हमारी कितनी arguments when Nasir was working with us, there have been so many arguments on that. Every day you may be having arguments. अब खुराफाते नितिन है, he has everyday argument. मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? मैं इसको क्यों बोलूँगा? ये तो ऐसा होना चाहिए, for example. And then you tell कि this is the perspective. So there is always a check. And all radio stations follow that. Third is individual. Actually क्या है ना, ego और pride में बहुत फर्क है. And that is from person to person. There are few people who do not accept that the level of responsibility they are carrying on their shoulders as a radio presenter, be it a smaller radio station, a bigger radio station, or an Akashvani, anywhere, is immense. आपको नहीं पता कि आपको एक शख्स सुन रहा है, आपको 60,000 लोग सुन रहे हैं, या आपको 60 लाख लोग सुन रहे हैं. So when you realize कि वो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एज अ रेडियो प्रेजेंटर है, और हमारी कहेगी एक भी बात किसी की वेलनेस को स्पॉइल कर सकती है, किसी के रिलेशन को स्पॉइल कर सकती है, देश में दंगे फसाद करा सकती है, किसी को डिमीन करा सकती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हर एक आरजे एक्सपेक्टेड है कि वो ऑन एयर जाए और उसको अपना एक बाइबल मान के चले. Right? So that is what I feel. वो individual basis पे है नासिर. If anybody has something to I add just to have it. one last thing to say. आपने बहुत valid point बोला. There are certain words which are trigger points. पर मुझे लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक का ही टाइम था, उस टाइम पे बोला जाता था हर डिस्कशन में कि लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो, शो सोचो. फर्स्ट लॉकडाउन, बिकॉज ऑल ऑफ अस वर गोइंग थ्रू अ बोट व्हिच वी नेवर वेंट इन अर्लियर. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक टीम भी जो काम करती है उसकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह हैपेंड अराउंड द टाइम, जून was the time. How is it that people were affected? How is it that one death by suicide affects everybody but not us who are presenting the show? I will never be an expert, but I can always come and connect with people. मेरा काम ये है कि मैं लोगों को बांध के रखूं और उनके 3 घंटे या 4 घंटे उनको ये लगे कि हाँ उनके साथ कोई है और वो जिस कश्ती में उसमें और लोग भी हैं. If I am feeling scared, I would want to talk to him about the fact that यार मुझे भी डर लग रहा है. I will not probably talk about suicide, but I will talk about the fact क्या आपको भी इस टाइम पे ऐसा लग रहा है. Maybe you know we can do better things. Maybe why not hear an expert and get an expert in जो मुझे भी गाइड करे, इसको भी गाइड करे. But हमें वो बांधना तो पड़ेगा. We cannot run away from topics just because they are trigger points. Because आज, believe you me, when I say this, I can say it on behalf of everybody, irrespective of our backgrounds. We all are going through the same emotions. The amount of corporate pressures, the amount of number pressures on everybody. तो मैं अगर listeners के लिए कुछ प्रोग्राम बना रही हूँ, अगर खुद वो जी नहीं रही, मैं रिलेट ही नहीं कर पाऊंगी. All right, so I guess that answers Nasir's question, right? So I think we can sum up the session as, you know, numbers we need as radios, numbers we need for ourselves, and the narrative, the stories we need for people so that we are able to connect with them. Yes. So somewhere along the line, this session ends on both data and stories. Yeah, you said it in one line. Data and stories hand in hand. फालतू में एक घंटा बात किया. Thank you so much, panelists. Thank you, everyone.